Hey guys, welcome to Lossified. In our series of sharing thoughts with the toppers, today we have Dirga ma'am with us. तो दीर्घा मैम ने सिक्योर की है रैंक 34th इन दिस रीसेंट MPCJ 2019 फेज 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए दीर्घा मैम से जानते हैं। मैम, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Uh, First of all, thank you for having me over here. प्लेजर मैम। I've done my schooling from Neemuch itself, from Kamal Convent School, and thereafter, through CLAT, I got National University Raipur. So in 2017, I was done with it. In 2018, I gave Supreme Court clerkship exam, and then I was a law clerk to Honorable Justice Bhanumati. And yes, thereafter, I I completed my higher education LLM, and then I got JRF, and ओ then गॉड। uh, currently I'm working with NHA as a law officer, National Highways Authority of India. Right, ma'am. That's tremendous. So we can have guidance from you for the judiciary as well, for and also for the net JRF thing. Ma'am, which year did you clear your JRF? In 2019. 2019. Right, ma'am. How did you plan to get into this judiciary? Was it from the college, or it's a recent development? See, while in school days also, I was quite clear that I wanted to study law, but it was never like I wanted to be a judge. So Right. judiciary was never in my mind, like while I was in my college days. So as the peers were thinking, and as the influence which is there of the environment, and in NLUs, it's mostly a corporate culture. So बिल्कुल my मैम। whole CV speaks about corporate only. Like, for instance, the internships also which I did was in like Right, say, ma'am. and the top-notch law firm. So I was at that time I had in mind that I want to go in the corporate field. But Right, ma'am. as time progressed, I became quite sure that this is not what the kind of life I want. So Right. after graduating, basically, I thought I'll be going for judiciary. Right, ma'am. So how many years has it been that you have been preparing? See, it was like in 2017, as I said, I graduated. So as exam schemes, and I gave different sort of exams. So in 2017, yes, I started preparing for judiciary. तो So मतलब कॉलेज में आपने जुडिशरी की पढ़ाई नहीं बिगिन करी उसके बाद? बात ही करिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे इसलिए ये लगता है कि अगर कोई बहुत पहले क्लियर है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल क्योंकि राइट, द वे दिस प्रोसेस गोज़ ना तो इट टेक्स 3 इयर्स राइट फ्रॉम स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, गिविंग योर एग्जाम बिकॉज़ इट्स अ 3 फेज एग्जाम। तो वो राइट। 3 साल आपके टोटली बुक होते हैं। अब वो जितना बिल्कुल। अर्ली आप स्टार्ट करोगे, जितना क्लियर आप पहले अपने एम में हो, वो आपको उतना बेनिफिट करेगा। और आपने तो उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं, नेट क्वालीफाई, जेआरएफ क्वालीफाई, एलएलएम किया, मास्टर्स किया। आई एम श्योर मास्टर्स ने भी आपका काफ़ी एनर्जी लिया होगा। तो मैम, पहले तो बिकॉज़ यू आर वन ऑफ अ काइंड जिसने मास्टर्स भी किया है, हम पहला ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैम बताइए, मास्टर्स की तैयारी मतलब मास्टर्स को और जुडिशरी की तैयारी को कैसे मैनेज किया आपने? See, it was like when you study for judiciary, so you have those subjects, constitution, criminal law, and everything. So that's why I did my master's in constitution only. कॉन्स्टिट्यूशन। And the idea was that I should have some backup plan. राइट। That's why in 2018 only I appeared for CLAT. So in that I got AIR 58. So because of that, I'm currently doing my job, National Highways Authority in वाओ! National Highways Authority. So I got a direct call from them for that. So it was a blessing that way. Otherwise, the alternative career which I thought for was assistant professorship, and for that I did masters. And Right. by fluke, I You did wanted to go into academics. So we have you with us who has plans for academics, who is currently working with National Highway Authority of India and is also now a judge. So we have it's really great to talk to you, ma'am. Preparation के बारे में बताइए। कैसे-कैसे एडवांस किया आपने? पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज? सी आई वुड से एज कोचिंग तो की नहीं थी, खुद से ही पढ़ना था, सब मटेरियल वगैरह देखना था। सो राइट, जितना मुझे समझ आता है इस प्रोसेस के बारे में, वैसे हर इंसान का अपना एक प्रोसेस होता है, बट जितना मैंने एनालाइज़ किया, सी आप कभी भी प्री के लिए नहीं पढ़ते, आप हमेशा राइट। मेंस के लिए पढ़ते हो, क्योंकि मेंस ही आपके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। और प्री के बिल्कुल, लिए पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने मेंस पढ़ लिया है ना, कॉन्सेप्ट्स आपके बन गए हैं, तो जिस दिन आपकी प्री की डेट आ रही है, उससे शायद 1 महीना ही देना है, आपका प्री अपने आप ही तैयार हो जाएगा। उस 1 महीने में आपको बस वो बेसिक्स पे कंसंट्रेट पकड़ करना है, बनानी है। अदरवाइज़ आपका पूरा फोकस मेंस ही होना चाहिए। तो मैम, आपके दिमाग में हमेशा से एमपी जुडिशरी था, आप एमपी की रहने वाली हैं या बाकी स्टेट्स भी आपने एम किए?
नहीं, वैसे मेरे दिमाग में हमेशा से एमपी जुडिशरी ही था। इट्स नॉट लाइक कि मैंने किसी और जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दिया, बट एम बट नहीं लेकिन किया। वो होता है हाँ, बट वो होता है ना कि वो एग्ज़ाम्स इसलिए दिए गए कि मैं क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है, आपने कितनी अच्छे से क्यों ना पढ़ लिया हो। आप 3 महीने में उसे नहीं रिवाइज़ करोगे, तो यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स और उसको करने का यही है कि आपके सामने कोई ना कोई टेम्परेरी एम एग्ज़ाम रहे, होना जिससे कि आप चाहिए। पढ़ते रहेंगे। So that's why exams are very much necessary. So for राइट, that sake, I gave exams, but I knew thing very clear कि एमपी ही मेरा टारगेट है। तो मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी एमपी को लेके ही था कि राइट मुझे मैम। वो करना तो है। आप एक स्टेट को टारगेट करके पढ़ाई कर रही थी। राइट। मैम हर स्टेज का क्या प्री के लिए आपने कौन-सी बुक्स यूज़ की या 1 महीना जो आप जैसा आपने बताया कि 1 महीना लिया आपने प्री की तैयारी में, तो उस 1 महीने में क्या किया है ऐसा? सी आपको बेरेक्स पढ़ने होते हैं और आप बेरेक्स पढ़ लीजिए, लेकिन क्या होता है आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आएँगे जब तक आप क्वेश्चन बैंक नहीं यूज़ करेंगे और क्वेश्चन बैंक आप किसी का भी यूज़ कर लीजिए। इट्स जस्ट दैट कि वो प्रैक्टिस होना चाहिए। वो एक सेक्शन आपके सामने वो 5 बार गुज़रना चाहिए कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि उन लाइन से भी क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेरे पास राइट ऐसे मैम। 3-4 क्वेश्चन बैंक हैं और वो भी प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक ही बार करनी है। फॉर इंस्टेंस 2017 में जब मैंने ट्राई किया तब मैंने क्वेश्चन बैंक्स यूज़ किए होंगे। उसके बाद मैंने कभी क्वेश्चन बैंक्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपकी एक ही बार सॉलिड पढ़ाई होती है और तभी राइट, आपके नोट्स बनते हैं। उसके बाद तो आप सिर्फ़ उसे रिवाइज़ करते हो। राइट मैम। तो प्रिलिमिनरी के लिए आपका सजेशन है कि कोई भी एक क्वेश्चन बैंक होलिस्टिकली पढ़ लिया जाए। हाँ, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स पढ़ लीजिए, उसमें वो 2-3 क्वेश्चन बैंक्स लाके रख लीजिए, डायरेक्ट आपको तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन बैंक से आप कर सकते क्वेश्चन हैं। बैंक्स लगाने होंगे। राइट मैम, राइट मैम। एमपी के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया हो जिसको आप बताना चाहें कि प्रिलिमिनरी के लिए ये स्पेसिफिक एरिया है जिसे पढ़ना ज़रूरी है या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसका क्वेश्चन बैंक ज़्यादा देखने की ज़रूरत है? एक ओपी जिंदल करके था, तो मैंने आई थिंक वो वाला यूज़ किया था। इट्स बीन सो लॉन्ग और शायद 4-5 ईयर्स से मैंने बिल्कुल यूज़ भी नहीं किया है और मैं अभी मैं करंटली जॉब भी कर रही हूँ, तो इसलिए हाँ, मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक मुझे राइट मैम, यू आर वर्किंग ऑल्सो, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम अगेन। खैर एनीवेज़ मेंस की तैयारी कैसे करी आपने? क्या आप जॉब कर रही थीं उस वक़्त भी जब आप मेंस की तैयारी कर रही थीं? मैंने 2020 में अपना करंट जॉब स्टार्ट किया था, 2021 में इसका प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है, तो मैंने राइट, राइट। तो स्टार्ट पूरे किया। प्रोसेस के दौरान यू वर वर्किंग और उसके पहले भी आप मास्टर्स कर रही थी, नेट जेआरएफ भी आपने पढ़ के दिया होगा, तो मतलब काफ़ी आपने टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने वो पहले 1 साल दे दिया था अपना प्रिपरेशन को, 2017 से 18 क्योंकि 18 में फिर मैंने क्लर्कशिप किया सुप्रीम कोर्ट में। तो वो मैंने दे दिया था, तो मेरे लिए अब ये था कि अभी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है और उसको चीज़ को रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करते रहना है। पढ़ाई एक ही बार अच्छे से करी जाती है, फिर रिविज़न किया जाता है। राइट, एग्ज़ैक्टली। राइट। बहुत ही बढ़िया गाइडेंस मैम। उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या मेंस के लिए स्पेसिफिकली कैसे पढ़ा? सी मेंस के लिए जितना मैंने एनालाइज़ किया है 4 पेपर्स हैं। पेपर 1, पेपर 3 में आपने सही से कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, आपने नोट्स बना लिए हैं, आप वही क्वेश्चन्स लीजिए जो प्रीवियस ईयर्स के भी हैं और अपने आंसर्स प्रिपेयर करके रख लीजिए। एक बार आपने प्रॉपर्ली होता क्या है जैसे रेसडीडी काटा, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आपको आता ही बहुत अच्छे से, पर वही ना उस टाइम पे उन 3 पेजेस में आपको एकदम स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है। राइट उस मैम, टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसमें क्या डालूँ, क्या नहीं। ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से ही पहले से होनी होनी चाहिए। तभी वो 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होगा। पेपर कंप्लीट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? राइट, तो इसलिए आंसर राइटिंग और पेपर 1 मुझे लगता है कि जो मेकिंग और ब्रेकिंग वाला काम है ना, वो पेपर 2 और पेपर 4 ही है। पेपर 1 एंड पेपर 3 में तो फिर भी ऑलमोस्ट एवरेज मार्किंग हो जाएगी। अभी भी आप एग्ज़ाम देखोगे, तो जो एक रेंज है 55 से 65 जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका 55 से 65 के रेंज में ही होगा मार्क्स। बट पेपर 2, पेपर 4 आपकी रैंक भी डिसाइड कर रहे हैं और ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू दोगे कि नहीं। सही बात एंड है मैम। हाँ, सो जैसे आई वाज़ वेरी मच क्लियर कि पेपर 2 में ट्रांसलेशन आता है, आई एम वेरी वीक इन इट। तो मुझे अपनी वीकनेस इस मामले में पता थी कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने एक्स्ट्रा राइट, एफर्ट पेपर 4 में डाला कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें मैं स्कोर कर सकती हूँ, जजमेंट राइटिंग जजमेंट राइटिंग। तो उसको कैसे वही प्रैक्टिस किया मैम? कुछ टिप्स आप देना चाहें जजमेंट राइटिंग के लिए कि कैसे तैयारी करते हैं उसकी? सी जजमेंट राइटिंग में तो पहले आपका सब्सटैंटिव लॉ पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पता है तभी आपको उस सेक्शन को यूज़ करना आएगा। एक होता है क्वेश्चन सेक्शन पता होना, एक होता है उसका एप्लीकेशन जानना। तो पेपर 4 इज़ अबाउट एप्लीकेशन फर्स्ट। सेकंडली आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको एकदम क्लियर रखना है। पेपर ट और सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि पेपर हमारा बहुत लेंथी आता है, पेपर 4। तो प्रॉब्लम सही से समझनी है, मार्शलिंग और एप्रिसिएशन प्रॉपर्ली होना चाहिए।
अब जैसे मैंने तो इसमें रॉबिन जी सिंह की एक बुक आती है, वो देखा था, पर उसमें क्या मार्शलिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थी, तो आपको वो कर्टेल करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आपका वो 3 घंटे में जजमेंट तभी कंप्लीट होगा जब आप 10 जजमेंट्स पहले से लिख के जा रहे हो। राइट मैम। हाँ, तो जैसे मेरे पास तो टाइम कम था, लेकिन मैंने पहले छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम दिया था, जिसमें आता ही जजमेंट राइटिंग है। तो तब मैंने वो 1 महीने प्रैक्टिस की थी जजमेंट राइटिंग की। तो जब एमपी का एग्जाम आया तो मैं सिर्फ फॉर्मेट देख के गई थी, तब मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था, क्योंकि वो राइट मेरी मैम। 1 महीने की प्रैक्टिस मुझे तब बेनिफिट काम आ दी। गई। हाँ, तो राइट। मुझे लगता है कि अभी अगर डेट्स नहीं आई है ना, तो प्लीज ये बहुत अच्छा टाइम है। होता क्या है, हम पेपर 1 और पेपर 3 में ही फोकस करते रह जाते हैं लॉ के लिए, पर आप प्लीज पेपर 4 के लिए जजमेंट लिखना स्टार्ट अभी से कर दें, क्योंकि बाद में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। राइट तो मैम। अभी राइट। एटलीस्ट 15 20 डेज आप इस चीज को दीजिए। ट्रांसलेशन को करने का मैम कोई तरीका? I don't think so I'm the right person to actually suggest in translations. मैंने एक दो बुक्स ले लिया था, उसका मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बट आई रियली कांट सजेस्ट ऑन दैट। वैसे इसका बेस्ट तरीका जितना मुझे और लोगों को देख के समझ आया है, वो ये है कि जो प्रीवियस जो एडीजे के पेपर्स होते हैं और जो प्रीवियस जुडिशरी के जो पेपर्स आए ना, आप राइट वो मैम। सॉल्व करिए और उनमें से वर्ड्स पिक करिए। कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प कर जाएगा, उसके अराउंड भी होंगे। राइट मैम। राइट मैम। इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल तैयारी, कुछ स्पेशल नैक जो आपको बताना हो एस्पिरेंट्स को? सी अब एक्चुअली इंटरव्यू के लिए भी हमें एक फॉर्म फिल करना होता है। इफ आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सो माय एक्सपीरियंस वाज इट वाज ऑल अबाउट माय जॉब इंटरव्यू, माय करंट प्रोफाइल। सो इट वाज ऑल अबाउट एनएचएआई, जो मेरा इंटरव्यू गया है। ऑब्वियसली और लोगों अच्छा। का लॉ बेस्ड होगा, बट बिल्कुल। क्योंकि मैं आर्बिट्रेशन एक्ट से डील करती हूँ अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आर्बिट्रेशन में जितनी भी इंटीग्रिटीज है, तो मेरा इंटरव्यू उस डायरेक्शन में गया है। बट राइट। ये है कि आप इंटरव्यू को बिल्कुल भी लाइटली एटलीस्ट एमपी में तो नहीं ले सकते, राइट क्योंकि मैम। वी हैव गॉट अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क एंड लेकिन वही था, आई रियली डिडंट नो, तो मैंने तो कॉन्सेप्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स ही मैं पढ़ के गई थी कि राइट। कॉन्फिडेंस रहे। वो चीज आपसे अपने कॉन्फिडेंस प्ले करते हो, बाकी तो इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट आई रियली, जो उनको क्लिक कर एंड इट जाए। इज रियली अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो कि क्या पूछेंगे। तो एग्जैक्टली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन सेल्फ देयर। उसके हाँ, पहले से खुद को बना के जाओ कि हाँ हम अच्छा कर लेंगे। हाँ, और कहीं ना कहीं आप ही ड्राइव करते हो, जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, उसी से ही आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। राइट, राइट, राइट। तो तो वो आपके केस में ये आपकी करंट जॉब प्रोफाइल था और आप यही कहना चाहेंगी, आई थिंक एज़ फार एज़ आई कैन मेक आउट, कि जो फॉर्म फिल किया है इंटरव्यू के लिए उसको अच्छे से समझ के जाना है एग्जैक्टली कि आप हम उसको क्या थोड़ा, लिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस पक्का आएंगे। राइट, राइट, राइट मैम। कैसे रही मैम आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी? क्या-क्या चैलेंजेस आए पढ़ाई में? कब-कब लगा कि अब तो बहुत मुश्किल हो रही है पढ़ाई? सी अब जैसे मेरा तो पूरा मतलब जॉब के साथ ही रहा, सो ये राइट। रहा कि मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे अपना स्ट्रेंथ पता था कि मैं रात को नहीं पढ़ सकती, आई कैन नॉट स्टडी इन नाइट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू कम बाय 7 फ्रॉम ऑफिस टिल 9:30 10 आई यूज्ड टू स्लीप। आई यूज्ड टू वेक अप एट 4। तो 4 टू 8 का जो विंडो होता था ना, वो मेरा टाइम होता था जब मैं पढ़ती थी। तो वो हुआ, फिर 9:30 से फिर जॉब का ऑफिस स्टार्ट है। पर ये भी है कि मेरे ऑफिस वाले भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, मैनेजर एंड एवरीवन। सो आई यूज्ड टू टेक बुक्स आल्सो समटाइम्स। बट राइट। ये है कि मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपर करेंगे ना, और अपने एग्ज़ाम सही से टारगेट कर रखा है, आपको पता है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हैं। एक राइट मैम। कंसिस्टेंसी और बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन 6 घंटे और अगले दिन 2 घंटे। एक राइट, राइट, राइट। कंसिस्टेंसी। तो मैम आपका बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहा कि आपने टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को की बना के रखा कि रोज इतना इतना समय देना है। मैम अच्छा, ये तो आपका रोज का रूटीन होगा कि 4 घंटे सुबह दिए, लेकिन जब एग्जाम करीब आ रहा था तो फिर तो ये थोड़ा सा बढ़ा होगा, ये टाइम स्पैन आपने बढ़ाया होगा कि ये 4 से बढ़ा दें। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम एकदम ही पास आ गया, तब देन एटलीस्ट 1 वीक का आई थिंक मैंने मेंस में हॉलिडे लिया था। तो 1 वीक वीक तब मुझे एक रिगरस पढ़ाई की ज़रूरत थी कि मेरा एक बिल्कुल मैम। प्रॉपर टाइम टेबल 1 चले। वीक भी काफी कम टाइम है मतलब मेंस के लिए। नहीं, आई टोल्ड यू ना कि मेरी प्रिपरेशन मैं पहले कर चुकी थी। इट वाज़ लाइक द राइट। रिविजन व्हिच वाज़ गोइंग ऑन। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी, और फिर आप अगर रोज़ अपने टारगेट्स अचीव करते रहते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आप में रहता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि माय जॉब वाज़ नेवर अ हिंड्रेंस, रादर इट गेव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू मी कि राइट। ठीक है, तो एक अलग स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस बना था। के रखी उसने। हाँ,
तो और अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा एक्टिव रहती थी उस टाइम पे, जितना मैं अभी लेथार्जिक फ़ील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कितना खाली है अभी सब कुछ। बिकॉज़ एक प्रिपरेशन साइड बाय साइड चल रही थी, तो मुझे हाँ, लगता है कि वो हो जाता है आपका मैनेज। अपना जॉब चल रहा था, साथ में प्रिपरेशन, हमेशा एक टाइम चलता रहता होगा दिमाग में कि अब देर टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब वो चीज़ थोड़ी हल्की हो गई होगी। राइट मैम, राइट। मैम, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी प्लान बी के बारे में? जैसा आप हमें अभी तक इसेंट्रिक एग्ज़ाम्पल मिली हैं कि जिसका प्लान बी, सी, डी सब कुछ अच्छे से चल रहा था और आपने अपना प्लान ए अचीव किया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि प्लान बी का क्या सिग्निफिकेंस होता है लाइफ़ में? सी प्लान बी से ये हुआ कि मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आपको वो दे देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मेरा इस फील्ड में जॉब नहीं है, मैं भले आर्बिट्रेशन एक्ट से डील कर रही हूँ, पर एक एक्सपीरियंस आपको आपके वर्क प्लेस को डील करने में, हर चीज़ में बहुत हेल्प करता है। तो मुझे और सिर्फ़ खाली बैठ के सिर्फ़ प्रिपरेशन वाली चीज़ को मैं थोड़ा कम सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वरना एक दिन आपका ब्रेकडाउन होता ही है। बिल्कुल सोसाइटी के मैम। वो कहीं न कहीं वो आपको बहुत सारी लेवल्स पे इफ़ेक्ट करती है। तो इट्स बेटर। और एलएलएम मुझे लगता है कि क्योंकि आप जुडिशरी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो एलएलएम इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आप राइट कर मैम। सकते हो। और जब आप इतनी रिगरस प्रिपरेशन में ऑलरेडी हो ना, तो नेट जेआरएफ आल्सो इज़ वेरी इट्स नॉट दैट बताइए टफ। मैम, कुछ नेट जेआरएफ की तैयारी के बारे में भी बताइए। सो नेट के लिए इट वाज़ नॉट लाइक कि मुझे जेआरएफ चाहिए था, आई थॉट आई विल बी गोइंग फॉर नेट। तो सो नेट ये एग्ज़ाम भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, नेट जेआरएफ? हाँ, नेट जेआरएफ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट राइट। जुडिशरी वाज़ नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट मैम, इससे ये पहले मैं एमपी का इंटरव्यू दे चुकी थी। राइट, राइट, राइट। इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुँच चुकी थी हाँ, पहले। हाँ, हाँ, राइट, मैंने राइट। स्किप किया था। सो नेट के लिए तो मतलब पेपर वन के लिए एक बुक आता है, तो एक क्वेश्चन बैंक टाइप का था, उसमें कुछ थ्योरी भी थी, तो मैंने बस वही सॉल्व किया था। एंड देयर आर ऑन यूट्यूब देयर आर मेनी चैनल्स जिसके वीडियोस हैं, तो इट्स मोर अबाउट योर प्रैक्टिस। और रिगार्डिंग पेपर टू, जो लॉ का पेपर होता है, व्हाट आई डिड वाज कि आई रोट डाउन द सिलेबस, आई यूज्ड टू पिक अप दोस एक्ट्स, उस एक्ट पे अगर कोई होलिस्टिक वीडियो अवेलेबल है तो उसके फिर अपने नोट्स बना लीजिए। एंड दैट्स जैसे हाउ आई मैम जो अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट नेट में पूछे जाते हैं, जैसे आईएल है, जूरिस्प्रूडेंस है, आईटी एक्ट है, साइबर लॉ है, इन सब का प्रिपरेशन आपने कैसे टेकअप किया? सी जूरिस्प्रूडेंस तो वाज़ पार्ट ऑफ क्लैट, और क्लैट मैंने दे रखा था, तो राइट। जूरिस्प्रूडेंस वाज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट रिगार्डिंग डिफरेंट दीज़ ऑल एक्ट्स, तो उसपे मतलब मेरा पूरा नेट बेस्ड ही रहा है। इट्स नॉट लाइक कि कोई कोचिंग, बट नेट पे उस ने मतलब नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए इस एक्ट को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके कई राइट, सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। सो मैंने राइट, वही राइट, राइट। वीडियोस देखे, उनका मटेरियल से अपने नोट्स बनाए, एंड आई वेंट टू गिव दैट पेपर। राइट मैम, राइट मैम। पेपर 1 का सिर्फ थ्योरी बेस या क्वेश्चन ज़्यादा किए आपने? क्या पेपर 1 का लेके पेपर वन में वैसे मैंने क्वेश्चन ज़्यादा किए थे। मतलब क्वेश्चन पेपर ज़्यादा वन किए थे? में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी। मैं उस तरीके से अपना अप्रोच रखा था। राइट मैम। तो नेट जेआरएफ के बाद कभी आपने पीएचडी लेने का सोचा कि पीएचडी भी करनी चाहिए अब? एक्चुअली प्लान वही था कि फिर सोचती, लेकिन उसके पहले ही मेरे को एनएचआई से कॉल आ गया था। हाँ, तो सो आपने वो जस्ट प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। राइट मैम। आपने अपना पोस्ट ग्रेड कहाँ से किया है? मैंने अपना पोस्ट ग्रेड ओरिएंटल कॉलेज से किया है, ओरिएंटल तो कॉलेज मैम इंदौर। क्लैट में इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद आपने ओरिएंटल कॉलेज से क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि मैं जुडिशरी की अपनी प्रिपरेशंस को हैम्पर नहीं करना चाहती थी। राइट मैम, आई क्योंकि एक अंडरस्टैंड। अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को डील करने का। अगर मैं वहाँ से करती हूँ, तो अगर मुझे ज़्यादा अटेंशन वहाँ पे पे करना पड़ा, तो 1 साल मेरा यहाँ का वेस्ट हो जाता, डिस्ट्रैक्शन हो जाता, राइट। डिस्ट्रैक्शन हो जाता। और मुझे साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम्स में अपीयर भी करना था, तो वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता। तो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स बेटर आई डू फ्रॉम ओरिएंटल। इट तो वाज़ मैम जस्ट क्लैट आपने दिया ही इन द फर्स्ट प्लेस पीएसयूज़ के लिए था। हाँ, तो आपका इंटरव्यू का टाइटल, आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं इसको जुडिशरी टॉपर की जगह इसको होलिस्टिकली लॉ एस्पिरेंट्स का टाइटल दूँगी। बिकॉज़ इस पूरे सेशन में हमने जुडिशरी की भी बात करी, नेट जेआरएफ की भी बात करी, क्लैट की भी अब बात करने जा रहे हैं। तो आपने क्लैट क्यों दिया था? क्लैट मेरा बेसिक एम यही था कि आई वांट टू गो इनटू अ पीएसयू, बिकॉज़ आई थॉट कि दैट जॉब विल बी क्वाइट lucrative as there will be a work life balance which I was seeking in life. राइट So मैम। for that I thought, so my rank was AIR 58 in it. So that's how I got a call from NHA, because in that year NHA actually recruited till that rank.
ओके मैम, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। कुछ आप बताना चाहें एस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली कि ये करो तो सक्सेस मंत्रा, बिकॉज बहुत सारी सक्सेसेस हैं आपके पास, तो आई एम सो श्योर कि आपके पास कुछ तो सीक्रेट है। तो जो आप बताना चाहें एस्पिरेंट्स को। One thing I would say is, see, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी नहीं होता है. So hard work and consistency, and most importantly, know your exam. If you know your exam, what is its requirement, then half of the work is seriously done. So on a blank paper, first be clear कि नहीं मुझे यही जुडिशरी, और मुझे ऐसा लगता है जो मल्टी डायमेंशनल वाला अप्रोच होता है ना, कि मैं ये भी जुडिशरी का दे दूं वो भी दे दूं, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं लीड करता है. अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी रखिए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, डोंट जस्ट मग अप थिंग्स, enjoy it, build your concepts, and then target one judiciary, and then give yourself to it. राइट मैम, राइट मैम। नो योर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, क्लैट दे रहे हो, नेट दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो नो योर एग्जाम इज योर की टू क्रैक इट। Right, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for sparing time. Lossified is extremely, extremely happy to have you here. Thank you, ma'am.